हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7.7 जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में पेज नंबर 178 पर है उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या लिखा है वहाँ पर, टू पार्टिकल ईच ऑफ मास m and speed v travel in opposite directions along parallel lines separated by a distance t. Show that the vector angular momentum of the two particles is the same whether is the same that vector angular momentum of the two particle system, देखिए दो पार्टिकल के सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम ओके is the same whatever be the point about which the angular momentum is taken. बहुत क्वेश्चन देखिए उसको एक बार और पढ़िए कि there are two particles. This is particle number 1 which is having mass m and velocity v. Mass m and velocity v which is moving in this direction, and this is another particle having particle number 2 having mass and velocity minus v. Why minus v? Because it is in this direction and it is in this direction. देखिए कहा है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर ही कहा है टू पार्टिकल ईच ऑफ मास m and speed v travel in opposite directions. कहा है along parallel lines separated by distance v. Show that the angular momentum of the two particle system, पूरा angular momentum हमको ढूंढना है. चलिए हम लोग पहले पार्टिकल को इस मोमेंट के अबाउट में यानी इस पॉइंट के अबाउट में हम लोग यहाँ पर रहते हैं. तो ये वाला क्या हो गया, दिस इज योर पोजीशन वेक्टर r1 बार and this is going to be your position vector, we can say r2 bar. So l1 bar can be written here as r1 bar cross p bar. देखिए ये दोनों तो सेम ही रहेगा, p1 bar. Okay, so l1 bar is equal to r1 bar. What is r1 bar? r1 bar is r1 bar and here it is going to be m v bar. So l1 bar is equal to m times r1 bar cross v bar. Let us say this is our equation number 1, and angular momentum about particle number 2 is equal to r2 bar cross p2 bar, है ना. तो ये क्या हो गया, l2 bar is equal to r2 bar हो गया बेटा. और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला कितना हो जाएगा m into minus v bar. Why minus v bar? Because it is moving in this direction. So L2 bar can be written here as m into R2 bar cross v bar but with the negative sign. Let us say this is our equation number 2, and now from equation number 1 and 2 total angular momentum of the system, total angular momentum of the system L bar is equal to L1 bar plus L2 bar. It is L1 bar plus L2 bar. So L bar is equal to how much it comes out to be? So it is m into r1 bar cross v1 bar plus यहाँ पर L2 bar. तो L2 bar जो है हम लोग यहाँ पर लिखेंगे minus m into r2 bar cross v2 bar. So L bar is equal to, if I take out m to be common, हुआ ना, ये वाला कितना हो गया, और v bar को भी हम लोग उसमें कॉमन निकालेंगे. सो इट इज r1 bar minus r2 bar into we can say v bar. Why into we can say v bar? तो ये वाला r1 bar minus r2 bar, तो r1 bar minus r2 bar ये क्या होगा बेटा, तो ये वाला ये दोनों के बीच का कितना वो हो जाएगा. देखिए r1 bar, ठीक है, ये r1 bar प्लस r bar है ना, प्लस r bar is equal to r2 bar. आपको एक बार आपने ऐसे क्यों लिया, तो ऐसे क्यों नहीं लिया, तो अगर ऐसे रहते, देखिए अपर डायरेक्शन में उसको लेते, मतलब ये वाला इसका हेड है, ये वाली टेल है, तो r2 bar plus r bar is equal to r1 bar. So can I write like this, r bar is equal to r1 bar minus r2 bar. बट यहाँ पर ये वाला उन लोगों ने d bar लिया, तो चलिए हम इसको d bar लिखते हैं, है ना. तो ये वाला d bar. सो ये वाला l bar कितना आ गया हमारे पास, m into d bar cross v bar. ओके, सो ये वाला हमारे पास
इसका एंगुलर मोमेंटम आ गया। अब इसी सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम किसी और पॉइंट के अबाउट में हम लोग ढूंढेंगे। देखिए ये वाला आपके पास हेड है, ये वाला भी हेड है और ये वाला भी हेड है, मतलब ये वाला प्लस ये वाला इज इक्वल टू r1 बार, है ना। तो ये वाला हमारे पास आ गया, दिस इज n बार इज इक्वल टू m into d बार क्रॉस b बार। नाउ इफ आई टेक एंगुलर मोमेंटम अबाउट डिफरेंट पॉइंट, लेट अस से डिफरेंट पॉइंट हम लोग ओडेस यहाँ पर, इससे कहीं पर भी आप ले सकते हो, यहाँ पर ऊपर कहीं पर भी आप ले सकते हो। ऊपर लूंगा तो फिर आपको दिखाई नहीं देगा। तो ये वाला हो जाएगा r1 डैश बार और ये वाला हो जाएगा आपके पास r2 डैश बार, है ना। सो ये वाला हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट पॉइंट O, है ना। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम अबाउट पॉइंट O, तो ये वाला आपके पास पॉइंट O आ जाएगा। नाउ अब हम लोग आगे देखेंगे, अगर हम लोग आगे देखेंगे तो ये वाला क्या हो गया, तो नाउ वी कैन से हियर दैट एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O दिस, है ना। तो ये वाला क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम, लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3, है ना। तो एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O दिस, अबाउट पॉइंट O दिस। अब ये क्या होगा, तो यहाँ पर अगर हमको ऐसा लिखना है जैसे एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट O दिस, तो ये वाला हो जाएगा L1 डैश प्लस L2 डैश, बराबर। यहाँ पर यहाँ से एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के अबाउट में L1 डैश प्लस L2 डैश। सो LO डैश इज इक्वल टू, इट इज R1 डैश इंटू P1 बार प्लस R2 डैश इंटू वी कैन से P2 बार, ये वाला हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर अगेन आई रिपीट द सेम थिंग। तो आपके पास आपको नोट बनानी पड़ेगी, उनका वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट बनाइए ताकि मैं एक साइड का उसको मिटा दूँ, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक साइड उसको मिटा देते हैं तो हमारे पास ये वाला क्या हो जाएगा, तो दिस विल बी, लिसन, ये वाला हो जाएगा LO डैश इज इक्वल टू R1 डैश इंटू P की जगह पे क्या हो जाएगा MV बार, है ना। और यहाँ पर R2 बार क्रॉस M इंटू माइनस B बार, ठीक है। तो यहाँ पर LO डैश इज इक्वल टू, ये M को हम लोग बाहर निकाल देते और यहाँ पर R1 डैश माइनस R2 डैश, है ना, ये R2 डैश हो जाएगा और यहाँ पर ये क्या निकलेगा हमारे पास B बार। अगेन यू डू द सेम थिंग, देखिए यहाँ पर R1 डैश है, यहाँ पर D डैश है, D बार है और यहाँ पर R2, तो क्या हम लोग इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ये हमारे पास R2 बार प्लस D बार इज इक्वल टू R1 बार, या R2 डैश बार प्लस D बार इज इक्वल टू R1 डैश बार। सो D बार इज इक्वल टू R1 डैश माइनस R2 डैश, सो LO डैश इज इक्वल टू M और यहाँ पर D बार क्रॉस B बार। Let us say this is our equation number 4. देखिए इक्वेशन नंबर 3 और 4 से हमको क्या मिलता है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 and 4 we can say if I take angular momentum about point O, it equals the angular momentum about point O dash. So hence we have proven कि अगर हमारे पास ऐसी कोई सिस्टम है जिसके अंदर किसी भी पॉइंट के अबाउट में अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम लेते हैं तो वो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेम ही रहेगा, एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलेगा। ओके, सो इसकी नोट बनाइए बेटा, इसकी आप नोट बनाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, नोट बनाइए। देखिए अगर आपने सिर्फ ये वीडियो को देखा और नोट नहीं बनाए तो कोई मतलब नहीं रहेगा, इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम, है ना। तो आप नोट बनाना मत भूलिए, विदाउट मेकिंग नोट्स यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, बिकॉज ये फिजिक्स पूरा लिखा जाता है मैथमेटिकल लैंग्वेज में और मैथमेटिक्स को आपको अगर सही तरीके से करना है तो आपका दिमाग और साथ में काम करना चाहिए। तो आपको क्या लिखना है उसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, है ना, वो सोचना पड़ेगा। तो सोचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो लिखेंगे तभी आपको आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर जो है हमारे पास 7.8 है। देखिए अ नॉन यूनिफॉर्म बार, देखिए क्वेश्चन
पहले ये देख लीजिए, नॉन यूनिफॉर्म बार, मतलब नॉन यूनिफॉर्म का मतलब जो है इसका डेंसिटी जो है ये बार की चेंज हो रही है उसकी लेंथ के साथ में। अ नॉन यूनिफॉर्म बार ऑफ वेट W is suspended at rest by two strings of negligible weight as shown in the figure. The angles made by the strings with the vertical are 36 degree 9 minute मतलब 37 and 53। याद है 37 और 53 3 4 5 वाला है ना। तो यहाँ पर the bar is 2 meter long. Calculate the distance d of the center of gravity of the bar from its left hand. ओके चलिए बेटा, ये वर्टिकल है। अब ये वर्टिकल के साथ में पहला वाला हमारा एंगल बन रहा है 37 डिग्री अप्रॉक्सीमेट, ये वाला 36 डिग्री एंड 36.9 डिग्री मतलब 36 डिग्री और 54 मिनट आप देखिए ना। चलिए, और ये वाला एंगल बन रहा है आपके पास, ये बड़ा एंगल बन रहा है एंड दिस एंगल, ये बड़ा वाला एंगल जो है ये 53.1 डिग्री है ना। तो 53 डिग्री और 0.1 डिग्री कितना हुआ? 0.1 डिग्री का 6 मिनट, तो ये वाला हो गया। अब ये बार है बेटा, ये नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म मतलब कैसा होगा मैं आपको बताऊं। ये बार एक्चुअली आपकी टेक्स्ट बुक में उसको सही तरीके से नहीं बताया, लेकिन ये बार जो है ना ये ऐसा होगा। ये बार जो है यहाँ पर उसका मास ज्यादा होगा, उसका मास जो है ज्यादा होगा और यहाँ पर कम होगा, मतलब ये बार जो है ऐसा है। तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? यहाँ पर होगा। एंड दे आर आस्किंग अस टू फाइंड आउट दिस डी, है ये वाला आपको डी ढूंढना है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का जो मास, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है ना, इट इज 2 मीटर। तो ये वाला अगर डी है तो ये वाला कितना हो जाएगा? बहुत सिंपल है, ये यहाँ से यहाँ तक डी है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? इट इज 2 माइनस 2। ये वाला आपके पास हो जाएगा 2 माइनस 2। ओके, नाउ अब यहाँ पर ये टेंशन क्रिएट होगा। लेट अस से दिस टेंशन इज T1 और यहाँ से यहाँ पर और दूसरा टेंशन क्रिएट होगा, दिस टेंशन इज वीकन से T2। आपको क्या ढूंढना है? ये डी ढूंढना है, इतना आप याद रखिए। तो ये वाला जो है नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी का होगा, मतलब आप समझ लीजिए ना, यहाँ पर ज्यादा मास होगा, यहाँ पर कम मास होगा, है ना। मतलब डेंसिटी जो है चेंज हो रही है। मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसा बता दिया है, वरना ये बार ऐसे होता है तो यहाँ पर ज्यादा मास होता और यहाँ पर कुछ होल्स होते, मतलब अंदर पोर्स होते, पोर्स जो होता है यहाँ पर मास कम हो जाता है। ऐसे भी हो सकता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल। सब अब हम लोग क्या कहेंगे कि ये पूरी के पूरी सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, है ना। तो इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हुआ? ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में। अब आप देखोगे यहाँ पर हम लोग जो है एक दूसरी फिगर ड्रॉ करेंगे, उसमें जो है यहाँ पर ये टेंशन के कंपोनेंट लेंगे। तो देखिए बेटा, मैं दूसरी फिगर यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको जो कुछ भी समझाना हो वो मैं दूसरी फिगर में आसानी से समझा सकूँ। ये एंगल जो है आपके पास अप्रोक्सीमेटली 37 है और ये वाला आपके पास 53 है ना, 53 अप्रोक्सीमेट हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर टेंशन टी है ना, तो ये वाला एंगल अगर 37 है तो इसको भी कितना होना पड़ेगा? 37 होगा ना। यहाँ से अगर हम लोग वर्टिकल ऐसे ड्रॉ करेंगे तो दिस एंगल विल बी 37 डिग्री, ठीक है बेटा। अब ये वाला कितना एंगल होगा? ये वाला 53 होगा। एक्चुअली मुझे ये छोटा बताना चाहिए, ये बड़ा बताना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये छोटा होता है, ये बड़ा वाला जो है आपको दिख रहा है, लेकिन चलिए चलेगा। अब यहाँ पर टेंशन जो है सपोज T1 है तो इसका एक कंपोनेंट गिरेगा T1 cos 37, है ना, T1 cos 37। और यहाँ पर एक दूसरा यहाँ पर अगर टेंशन इस स्ट्रिंग में T2 है तो ये वाला हो जाएगा T2 cos 37, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास T1 sin 37 होगा ना बेटा। देखिए अगर T1 cos 37 यहाँ पर तो T1 sin 37 यहाँ पर होगा, और यहाँ पर कितना होगा? बोलिए बेटा, बोलिए सही है। T1 T2 sin 53 37 नहीं बेटा 53। देखिए गलती मत कीजिए, मेरे कर दी गलती। 37 यहाँ पर होगा और 53 वहाँ पर होगा। अब ये दोनों फोर्सेस जो है अपर डायरेक्शन में लग रहे हैं,
एक फोर्स उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, है ना। तो ये सिस्टम जो है आपके पास रोटेशनल एज वेल एज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, T1 cos 37 प्लस चलिए 36.9 लिखते हैं, वही होगा, चलिए ध्यान दीजिए इसको, जब आंसर फाइनल हमको आएगा तब हम लोग इसको 53.1 में कर देंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि 36.93 ना ये वाला वो एंगल बनेगा 5, 3 और 4 वाला, याद है आपको ये वाला, अगर ये वाला एंगल 37 है ना, तो यहाँ पर इसकी ऑपोजिट साइड 3 होगी, ये वाली 4 होगी, और यहाँ पर ये वाली आपके पास 5 होगी, ठीक है। और 53 अगर ये एंगल बनेगा तो ये वाला, ये हमको अच्छी तरीके से मालूम है। That is why instead of taking 37.9 degree, we will take it cos 37, ठीक है बेटा, प्लस अपर डायरेक्शन में दूसरा कौन सा फोर्स है, T2 cos 53, है ना, माइनस डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स W is equal to 0. Why? Because the system is in कौन से इक्विलिब्रियम में बताइए, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में, ग्रेट। तो ये वाला आपके पास cos 37 plus T2 cos 53 is equal to, we can say, W. Let us say this is our equation number 1. अब देखिए ये दोनों फोर्सेस पे एक दूसरे को इक्वेट करेंगे। Now we can say, देखिए आपको ध्यान रखिए क्या ढूंढना है बेटा, D ढूंढना है। Let us say this point is A, this point is B, है ना। चलिए कोई बात नहीं, अब हम लोग जो है उसके अंदर जाएंगे, तो नाउ वी कैन से यहाँ पर T1 sin 37 which is in this direction, that is why it will be minus plus T2 sin 53 is equal to 0, because ये ऐसे भी नहीं घूम रहा है, तो अगर आप ऐसे लिखोगे कि T1 sin 37 is equal to T2 sin 53, तो भी कोई आपको मना नहीं करेगा, होगा। इसको आप ऐसे में जाओगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस साइन दोनों से कैंसिल हो जाएगी। तो लेट अस से दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। सो आवर इक्वेशन नंबर 1 है ना, ये वाला हमारे पास आ गया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि फिर बाद में जो है गड़बड़ ना हो, क्योंकि मुझे इसको मिटाना पड़ेगा बहुत थोड़ा सा जल्दी समय। तो T1 cos 37 प्लस T2 cos 53 प्लस नहीं is equal to W. Let us say this is our equation number 1, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा T1 sin 37 is equal to T2 sin 53, है ना। Let us say this is our equation number 2. अब आप इतनी नोट बनाइए, फिर बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आप इतनी नोट बनाइए। चलिए ओके, सो नोट बना लिया, मिटा दो। ओके, तो ये वाला आपके पास हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को तो D ढूंढना है, तो D कहाँ से मिलेगा, देखिए यहाँ पर। तो ये वाला पॉइंट A है ना, ये वाला पॉइंट A है, इस पे कितने फोर्सेस लगते हैं, एक ये एक दूसरा ये। यहाँ पर कौन सा फोर्सेस लगता है, ये यहाँ पर 2 फोर्सेस लगते हैं। अब एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर ये वाला पार्टिकल ये वाला रोड है और ये वाले रोड पे यहाँ पर ये पिवोटेड है, दिस रोड इज पिवोटेड एट दिस पॉइंट, और उस पे अगर ये डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो इट विल नेवर प्रोड्यूस अ टॉर्क। कोई बोलेगा कैसे नहीं करेगा, अरे वो यहाँ पर जाएगा तो खींचेगा उसको, रोटेशनल मोशन थोड़ा प्रोड्यूस करेगा। उसको रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करना है ना, तो या तो वो ये डायरेक्शन में होना चाहिए, या ये डायरेक्शन में होना चाहिए, या ये डायरेक्शन में होना चाहिए। तो ये डायरेक्शन सभी चलेगी, लेकिन 2 डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं चलेगी। एक ये डायरेक्शन कभी भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगी फोर्स की, और फोर्स की दूसरी ये डायरेक्शन ये भी कभी प्रोड्यूस नहीं करेगी। कोई बोलेगा मैथमेटिकली समझा दो, चलिए मैथमेटिकली इसको हम लोग बात करते हैं। कोई बोलेगा नहीं ऐसा नहीं, मैथमेटिकली समझा दो। तो ये मैथमेटिकली ये वाला फोर्स हुआ और यहाँ से यहाँ तक उसका पोजीशन वेक्टर हुआ, पोजीशन वेक्टर फोर्स इस पॉइंट पे लग रहा है, तो पोजीशन वेक्टर ये वाला हुआ। तो टॉर्क इज इक्वल टू वी कैन से RF sin थीटा इनटू n कैप होगा। व्हाट इज दिस थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन r बार एंड f बार। बताइए कितना होगा r बार एंड f बार?
0, आर बार भी उसी डायरेक्शन में और एफ बार भी उसी डायरेक्शन में, तो आर एफ साइन 0 इंटू एन के, मतलब ये वाला टॉर्क कितना हो जाएगा 0। तो मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको ये समझाया कि अगर जो है आपके पास यहाँ पर कोई पिवोटेड रोड है या कोई भी रोड है, उस पर ये डायरेक्शन वाला फोर्स कभी भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा और इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन वाला भी फोर्स कभी भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा, है ना। बाकी के सभी डायरेक्शन कोई फोर्स इतना छोटा सा एंगल बनाते करेगा टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, कोई बड़ा सा एंगल, कोई परपेंडिकुलर मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा परपेंडिकुलर वाला, है ना, ये वाला, फिर बाद में ये टॉर्क जो है कम होता जाएगा, लेकिन ये डायरेक्शन उसको प्रोड्यूस नहीं करेगी। अब देखिए पॉइंट ए में एक फोर्स हमारे पास ये है। अब देखिए T1 जो है ना, इसके कंपोनेंट हम लोगों ने ले लिए। देखिए T1 के हम लोगों ने कंपोनेंट ले लिए हैं, तो हम लोग T1 को भूल जाएंगे, T1 को हम लोग भूल जाएंगे, और यहाँ पर भी T2 के कंपोनेंट ले लिए ना बेटा, तो T2 को हम लोग भूल जाएंगे, है ना, ये वाला भूल जाएंगे। ठीक है, हम लोगों ने फोर्स नहीं, लेकिन उसके कंपोनेंट्स हम लोगों ने ले लिए। चलिए अब अगर हम लोग जो है बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल टेकिंग टॉर्क अबाउट, ये दो इक्वेशन तो है, पहले मैंने लिख लिए, अबाउट पॉइंट ए। चलिए तो ये वाला तो निकल ही गया, ये तो इसको गिनना ही नहीं है, कोई बोलेगा गिनो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों के बीच का एंगल जो है 180 बन रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। अब यहाँ पर जो है T1 टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, कौन सी डायरेक्शन में करेगा, ए पे, इट विल बी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट इज टॉर्क एट पॉइंट O इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये पूरा जो रोड है वो कहीं घूम नहीं रहा है, तो उस पर नेट टॉर्क अबाउट पॉइंट ए, सॉरी नॉट ए ओ बट टॉर्क एट पॉइंट ए इज इक्वल टू वी कैन से 0। ये वाला हो गया। अब हम लोग देखेंगे, देखिए बेटा यहाँ पर टॉर्क ए पे कौन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो टॉर्क ड्यू टू T1 प्रोड्यूस करेगा, फिर टॉर्क W भी प्रोड्यूस करेगा, फिर टॉर्क T2 भी प्रोड्यूस करेगा, है ना, ये वाला भी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन ये वाला कंपोनेंट नहीं। चलिए अब हम लोग टॉर्क गिनते हैं, तो यहाँ पर वो वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है, तो ये वाला है T1, बट इट विल प्रोड्यूस अ टॉर्क इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, लेकिन इसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोग टॉर्क कहाँ पर ढूंढ रहे हैं, पॉइंट ए पे, और ये फोर्स जो T1 cos 30 ये कहाँ से पास हो रहा है, तो ए से, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे T1 माइनस क्लॉकवाइज R कितना होगा 0, है ना, क्योंकि ए पॉइंट से उस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 0, और यहाँ पर क्या हो जाएगा T1 cos 37 प्लस, अब ये नहीं सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉकवाइज होगा। चलिए, और ये भी कौन सा प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला प्रोड्यूस कर रहा है, W जो प्रोड्यूस कर रहा है ना बेटा, that is also producing a torque in clockwise direction। तो ये तो 0 हो गया। अब ये यहाँ पर R कितना होगा D, और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा W, है ना, और बोलेंगे यहाँ पर W into D, ये वाला हो गया माइनस सॉरी प्लस, अब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, सो T2 cos 53, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखिए, ये वाला प्रोड्यूस करेगा इस पॉइंट के अबाउट में, तो फोर्स इनटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, तो ये वाला कितना हो गया आपके पास 2 into T2 cos 53 is equal to 0। So what we did here, we simply took how many forces we took, एक पॉइंट A था, सबसे पहले यहाँ पर जो फोर्स लग रहा था वो T1 cos 37 है ना बेटा, तो यहाँ से A पॉइंट से इस फोर्स का डिस्टेंस क्या था 0। अब दूसरा फोर्स कहाँ पर लग रहा था, ये वाला डायरेक्शन में, तो ये वाली डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही प्रोड्यूस करेंगे इसको, तो ये वाला जो है आपके पास हो जाएगा -T into W। कोई बोलेगा साइन, तो लिखो साइन तो 90 होगा ना, ये दोनों के बीच में R बार और W बार के बीच में, तो यहाँ पर लिखना कोई जरूरी नहीं है। और ये वाला कौन सा डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो उसमें दिशा हमारे पास 0 हो गया। अब ये 0 हो गया, तो वी कैन से 2T2 cos 53 is equal to D into W। Let us say this is our equation number 3। हमारे पास कितने इक्वेशन आ गए, 3 इक्वेशंस आ गए, ठीक है बेटा।
तो 3 इक्वेशंस हमारे पास आ गए। सो राइट इट डाउन, इतना लिखो, फिर बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। We have got 3 equations, हमको तो d ढूंढना है सिर्फ, है ना। सो राइट इट डाउन, 2 cos 53 is equal to dw। वीडियो को पॉज कर लीजिए, कर लिया। फिर हम लोग जो है सारे इक्वेशंस वापस हम लोग जो है यहाँ पर एक बार और उसका लिस्ट बनाएंगे। ये 2 तो है मेरे पास, लेकिन तीसरा जो है 2d2 cos 53 is equal to d into w। चलिए ये वाला हो गया। अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। चलिए अब ये वाला जो है नंबर 3, अब ये वाला है। अब देखिए t1 sin, अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला 37, तो 37 वाला 3, ये वाला 4 और ये वाला 5, मतलब ये वाला 53 होगा। ओके, हम लोग को ये बना दिया। अब हमारे पास जो पहला वाला सेकंड वाला इक्वेशन था वो t1 sin 37, तो sin 37 cos 3/5 हुआ ना। sin 37 ऑपोजिट साइड अपन ये वाला हो गया। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, t2 sin 53 cos 4/5, तो इट इज 3t1 is equal to 4t2। Let us see, this is our equation number 4, मतलब 3t1 is equal to 4t2। Now we have got 2 more equations, ये 2 equations हमारे पास है। ओके, सो t1 cos 37 plus t2 cos 53 is equal to w। Let us put this equation, मतलब यहाँ पर हम लोग अब cos 37 देखिए क्या है 4/5 प्लस t2 क्या है, t2 जो है ये हमारे पास है 3/4 t1, है ना। t2 की जगह पे हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ना 3/4 t1। ओके, 3/4 t1 और 3/4 t1 और साथ में cos 53, तो cos 53 क्या है 3/5, तो ये वाला हो गया 3/5 इज इक्वल टू कैंसिल करना। सो ये वाला क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ से 4t1 प्लस 9t1, है ना, 4t1 ये 3/4 है, तो एक काम करते हैं 4t1/5 x स्क्वायर जाएगा प्लस 9t1/20 इज इक्वल टू w। ठीक है, ये वाला हो गया हमारे पास। तो यहाँ पर अगर हम लोग 4/4 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाला कितना हो जाएगा 16t1/20 प्लस 9t1/20 इज इक्वल टू w। सो ये दोनों का अगर हम एडिशन करेंगे कितना हो जाएगा बेटा, बताइए 25t1 इज इक्वल टू 20w, मतलब 5t1 इज इक्वल टू 4w। ठीक है, 5t1 इज इक्वल टू 4w। ओके, सो राइट इट डाउन, इतना लिखो। इक्वेशन लंबा है, पहले ही बताया था ना मैंने, इक्वेशन लंबा है, तो राइट इट डाउन, इतना लिखो, फिर बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, हमको d ढूंढना है, इतना आप याद रखिए। और ये वाला मैं वापस लिख देता हूँ 3t1 इज इक्वल टू 4t। चलो हो गया, तो इसको लिखिए। फिर हम लोग जो है आगे उस इक्वेशन को लेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, 2t2 cos 53 इज इक्वल टू dw। अच्छा, अब हमारे पास t1 का वैल्यू है ना, तो यहाँ पर हम लोग इसको t1 में घुमा देंगे, t2 को क्या आ जाएगा, t2 इज इक्वल टू 3/4 इंटू t1 हुआ, 3/4 इंटू t1 हुआ, बिल्कुल हो गया। और cos 53 कितना हुआ, तो cos 53 आपके पास 3/5 इज इक्वल टू d इंटू w। अब आ गया आंसर, देखिए 2 इंटू 3/4। अब t1 जहाँ पर दिखाई देगा वहाँ पर मैं क्या 4/5 w ऐसे नहीं लिखूंगा, बिल्कुल लिख सकता हूँ इंटू 3/5 इज इक्वल टू dw। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये w एंड w विल गेट कैंसल्ड, और यहाँ पर ये 4 और 4 कैंसल, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 3 6, 6 3 18, 18/25
is equal to D. What are 25, 18 by 25 is equal to we can say D. अब ये कैलकुलेशन आपको करना है। तो ये काम करता मैं ही कर देता हूँ उसको। क्या करता हूँ यहाँ पर देखिए D is equal to 18 by 25 है ना, तो उसको 4/4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये कितना हो गया 72 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.72 मीटर इज द आंसर। तो डी का कितना आंसर आ जाएगा बेटा 0.72 है ना। तो ये वाला क्वेश्चन जो है बार बार एग्जामिनेशन में जो है आपको पूछा जाएगा। देखिए 30 मिनट्स हो गई है और अभी सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हमारे हुए। इसमें क्वेश्चन जो है थोड़े से लेंथी होते हैं, ये बात सही है। ठीक है, अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसकी नोट बनाइए और ये आप पकड़ के ही चलिए कि आपको ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछेंगे ही पूछेंगे। हाँ, अगर मैं वो 36.9 और 53.1 लेके चलता ना, तो फिर बाद में हमको वो लॉग टेबल में देखना पड़ता, ये सब करना पड़ता। इससे बेटर है हम लोगों ने 37, वैसे भी 36.9 ही होता है एक्चुअली। एग्जैक्टली जो है ना मैं आपको बता दूँ, ये वाला जो 37 है ना, ये 37 तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो इसका 36.9 ही होता है और यहाँ पर 53.1 ही होता है। अब भी यार ध्यान से लेके चलिए, लेकिन हम लोग जो है इसको अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7.10, क्वेश्चन नंबर 7.10 को देखिए। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर अबाउट अ टेंजेंट टू द स्फीयर। देखिए ये आपके पास स्फीयर है, इसकी टेंजेंट यहां से पास होगी, इसकी टेंजेंट है ना। तो फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर about tangent to the sphere. The moment of inertia of the sphere about its diameter is, पता है हमको भाई, क्यों बार-बार 2/5 mr², where m is the mass of the sphere and r is the radius of the sphere। चलिए पहला क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन, अगर डायमीटर ये है, डायमीटर के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने बार-बार जो करा था, अगर सॉलिड स्फीयर है तो ये वाला हो जाएगा 2/5 mr²। अब यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू दिस I डैश, ये वाला IC होगा, तो I1 is equal to IC plus md²। कहाँ से लाए बेटा, राइट, ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो IC is equal to हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 2/5 mr², और ये वाला md की जगह पे अगर हम लोग यहाँ पर r लिखेंगे तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास r²। सो IC is equal to 2/5 mr² प्लस ये वाला कितना हो जाएगा हमारे पास 5 mr² by 5। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो IC is equal to 7/5 mr² है ना। तो 7/5 mr² is the not IC, गलत हो गया, ये I1 हो गया, यस। तो I1 जो है हमारे पास 7/5 mr² ये वाला हो जाएगा हमारे पास। अब देखिए I1 comes out to be, now in the second question, given moment of inertia of a disk of mass and radius are about any axis of diameter to be about any of its diameter is mr²/4 सही है। Find its moment of inertia about an axis normal to the disk and passing through a point on its edge। ओके, चलिए कितना लिखिए, ये वाला हो गया ना पहला वाला क्वेश्चन। अब बी वाले को हम लोग जाएंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी है। देखिए क्या कहा है उन्होंने, गिवन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क ऑफ मास है। सपोज ये वाली आपके पास डिस्क है और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर है ना, ये वाला पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर इज गिवन बाय mr²/4। ठीक है, तो ये वाली एक्सिस के अबाउट में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, बहुत सिंपल है। देखिए ये IC1 है ना, तो उसका दूसरा डायमीटर ऐसे होगा IC2,
वो भी आपके पास mr²/4 ही होगी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमारे पास कोई डिस्क तो नहीं है, लेकिन देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। सपोज ये वाली हमारे पास डिस्क है, इसका एक डायमीटर है, एक डायमीटर ऐसे जा रहा है, ये डिस्क उसके ऊपर के टॉप को ध्यान से देखिए, ये वाली डिस्क है, यहाँ पर mr²/4, तो ऐसे भी डायमीटर ये वाला mr²/4 होगा ना। अब इस एक्सिस के अबाउट में कितनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी होगी, तो बहुत सिंपल है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो है सपोज ये वाला हमारे पास डायमीटर है और ये वाला डायमीटर के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सपोज IC1 हमको पता है, और यहाँ पर भी जो है ये डायमीटर के अबाउट में भी उतनी ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से सपोज ये वाला डायमीटर हम लोग इसको ऐसे बताते हैं, ये वाला, तो हम लोग जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस ढूंढ लेंगे। समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ? देखिए वापस हम लोग जो है ये डिस्क है, ये एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसके सेंटर में से पास होती हुई जो IZZ होगी उसके अबाउट में हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढेंगे। फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे, तो यहाँ पर भी हमको मिलेगा ये ऐसे एक्सिस के अबाउट में। समझ में आया? ये वाला डायमीटर है, ये वाला भी डायमीटर है। अब यहाँ पर हम लोग जो है सेंटर ऑफ मास में से जो पास होती हुई एक्सिस है उसके अबाउट में हम लोग डायमीटर ढूंढेंगे, और यहाँ पर भी हमको उसका पैरेलल एक्सिस लगा के उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ढूंढेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट अस से दिस इज I2 है, तो I2 is equal to IC1 plus IC1, तो I2 is equal to mr²/2 plus mr²/4, तो ये वाला कितना हो गया mr²/2 है ना, ये दोनों का एडिशन हो गया mr²/2। अब ये दोनों के अबाउट में हम लोग अगर ये ढूंढेंगे I' तो इस इक्वल टू वी कैन से I2 plus md², ये तो हमको मिल गया। देखिए ये वाला तो हमको कौन सा मिल गया, ये वाला I2 मिल गया है ना, ये 1 और 2 अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब यहाँ पर I' इज इक्वल टू क्या आ जाएगा I2। व्हाट डू यू मीन बाय I2? इट इज नथिंग बट इट इज mr²/2, और यहाँ पर ये m और d कितना है बेटा r, बिल्कुल सही है, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास r²। सो I' इज इक्वल टू वी कैन से 3mr²/2, तो I' कितना मिलेगा बेटा, ये एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिलेगा बेटा 3/2mr², ये वाला हमको ऐसे मिलेगा। ओके, सो राइट इट डाउन, इतना लिखो, फिर बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 7.11 नहीं, यस 7.11। चलिए क्वेश्चन नंबर 7.11, torque of equal magnitude are applied to a hollow cylinder and a solid cylinder, okay, both having same mass and the radius। अच्छा, the cylinder is free to rotate about standard axis of symmetry, the sphere is free to rotate about an axis passing through its side, which of the two will acquire a greater angular speed after a given time। अरे यार क्या बेकार हम लोगों को, देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन देते हैं ना कि हमको ऐसा लगता है कि हम लोग जो 11th में या हम लोग 2nd स्टैंडर्ड में, इतने इजी क्वेश्चंस देते हैं। अब टॉर्क ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर अप्लाइड टू होलो सिलेंडर, देखिए ये होलो सिलेंडर है हमारे पास है ना, और यहाँ से इसकी सेंटर से एक एक्सिस पास हो रही है, और यहाँ पर ये वाला आपको स्फीयर है। अब ये इसको हम लोग ये वाला नंबर 1 कहेंगे और इसको हम लोग 2 कहेंगे, ठीक है। सो टॉर्क अप्लाइड टू होलो सिलेंडर इज इक्वल टू टॉर्क अप्लाइड टू सॉलिड स्फीयर, है ना। अब दोनों में से कौन ज्यादा स्पीड गेन करेगा, एंगुलर स्पीड गेन करेगा। चलिए कोई बात नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे,
यहाँ पर लिखेंगे I1 अल्फा 1, मतलब टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा है ना, ये फॉर्मूला है हमारे पास। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है, वैसे ही टॉर्क इज इक्वल टू आई इनटू अल्फा है। तो ये I1 अल्फा 1 इज इक्वल टू वी कैन से I2 अल्फा 2, कोई शक है ना। अब ये होलो सिलेंडर है, क्या होगा बेटा इसकी मास स्क्वायर होगी, याद है, और यहाँ पर अल्फा 1 होगा और यहाँ पर कितना होगा 2/5 mr स्क्वायर। सॉलिड स्फीयर है, देखिए मुझे तो याद है सारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास। अब रट्टा नहीं लगाना, उसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। तो ये वाला आपको जो है, ये वाला आपके पास आ जाएगा दिस वन। ओके, सो ये वाला हम लोगों को कहा है कि इक्वल मैग्नीट्यूड सेम मास एंड रेडियस, तो mr स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 ये कितना हो गया 2/5। क्या मतलब हुआ, मतलब अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू 2/5 का मतलब क्या हुआ कि अल्फा 1 इज हैविंग लेस वैल्यू, ये 1 से लेस ही होगा ना, ये 1 से कम होगा, क्या होगा ये देखिए मैं आपको बताऊं, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इज इक्वल टू 0.4 होगा, ठीक है, अल्फा 1 ये दोनों का डिवीजन 0.4 हो गया, मतलब अल्फा 1 इज इक्वल टू 0.2 टाइम्स अल्फा 2, सॉरी 0.4 टाइम अल्फा 2, मतलब अल्फा 1 जो है इसका वैल्यू अल्फा 2 के वैल्यू का सिर्फ 40%, 0.4 40 डिवाइडेड बाय 100, यस, ये इसका जो है 0.40% है, मतलब अल्फा 1 इज हैविंग लेस वैल्यू देन अल्फा 2। अब अल्फा 1 क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस वन, एंड अल्फा 2 क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ दिस वन। तो किसका एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा है, स्फीयर का, तो कौन ज्यादा स्पीड गेन करेगा, एंगुलर स्पीड, स्फीयर नंबर, मतलब ऑब्जेक्ट नंबर जिसका एंगुलर एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ वही तो ज्यादा स्पीड को गेन करेगा ना, एंगुलर स्पीड को। यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन कम है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी आफ्टर टाइम, और उतने टाइम के बाद में ही इसकी एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ओके, सो दिस इज हाउ वी जनरली डू दिस। फिर उसके बाद देखिए 7.12 को देखिए, इसकी नोट बनाइएगा, 7.11 की नोट बनाइए। अब 7.12 को देखिए, देखिए 7.12 अब देखिए, a solid cylinder of mass 20 kg rotates about its axis with angular speed 100 radian per second and the radius of the cylinder is 0.225 meter. What is the kinetic energy associated with the rotation of the cylinder? What is the magnitude of angular momentum of the cylinder along its axis? चलिए, सॉलिड सिलेंडर है हमारे पास, क्या है बेटा, होलो नहीं, यहाँ सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सॉलिड, और उसका मास कितना दिया हुआ है, मास इज गिवन हियर एज 20 किलोग्राम। चलिए बढ़िया, अब उसकी एंगुलर स्पीड कितनी है, तो उसकी एंगुलर स्पीड इज गिवन हियर एज 100 रेडियन पर सेकंड। ओके, 100 रेडियन पर सेकंड, एंड उसकी रेडियस कितनी दी हुई है, रेडियस इज 0.25 मीटर। ओके, what is the kinetic energy associated with the rotation of the cylinder? So I is equal to, we can say क्या होगा, kinetic energy 1/2 I omega square. So it is 1/2 I की जगह solid cylinder, देखिए क्या होगा, mr square by 2, याद करो solid cylinder का mr square by 2 into omega का square. Put the values and find out the answer. So I is equal to 1/4, m की जगह पे 20, r की जगह पे 0.25 का स्क्वायर, और यहाँ पर 2, और ओमेगा का की जगह पे आपके पास क्या लिखना पड़ेगा, 100 का स्क्वायर। अब ये वाला जो है कैलकुलेशन ये आप कैलकुलेट कर लीजिए जो आएगा आपका आंसर, ठीक है। अब ये वाला आपके पास आ गया, फिर उसके बाद जो है उन लोगों ने क्या कहा है कि व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम हम लोग कैसे लिखेंगे, मैम
एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय I into ओमेगा। कैसे? लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है ना, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम I into ओमेगा भी होता है। सो यहाँ से आप लिखोगे mr²/2 और यहाँ पर ओमेगा, पुट द वैल्यूज एंड कैलकुलेट द आंसर, है ना। तो ये वाला आपके पास एंगुलर मोमेंटम आपके पास आएगा। एंगुलर मोमेंटम का अच्छा ये मोमेंट काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसको जनरली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसको जनरली रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इसको हम लोग क्या कहते हैं मालूम? AR, है ना। तो ये वाला आपके पास इसका आंसर आएगा, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो राइट इट डाउन। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7.13 को, क्वेश्चन नंबर 7.13 को देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 7.13 में इसकी नोट बनाइए। क्वेश्चन नंबर मैं पढ़ूंगा पहले, फिर उसके बाद जो है आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए मुझे तो पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 7.13, a child stands at the center of the turntable with two arms outstretched. The turntable is set rotating with an angular speed of 40 revolutions per minute. How much is the angular speed of the child if he folds his hands back and thereby reduces the moment of inertia to 2/5 times the initial value? देखिए यहाँ पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। Assume that the turntable rotates without friction, और दूसरा जो है हमको show that the child's new kinetic energy of rotation is more than initial kinetic energy of rotation. How do you account for this increase in kinetic energy? चलिए बेटा मैं इसको पहले आपको समझा दूँ। एक चाइल्ड है, वो चाइल्ड जो है पहले ऐसे खड़ा है ना। अब वो टर्न टेबल पे खड़ा है, टेबल ऐसे घूम रहा है, चाइल्ड ऐसे खड़ा है। अब वो अपना जो है हाथ को ऐसे कर देता है। जब हाथ को ऐसे करेगा तब जो है उसकी टर्न टेबल की स्पीड क्या होगी, है ना, और उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में क्या इंक्रीमेंट होगा और क्यों। दैट इज व्हाट दे हैव आस्क्ड अस टू फाइंड आउट। सो एक काम कीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़िए। अब देखिए बेटा, सबसे पहले जो है ये वाला आपके पास टर्न टेबल है ना। ये टर्न टेबल इज सपोज रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड गिवन, और उस पे ये चाइल्ड जो है ना वो ऐसे खड़ा हुआ है। पहले उसके हाथ जो है ऐसे उसने रखे। अब क्या करता है वो कि ये टर्न टेबल पे अपने हैंड्स जो है उसको फोल्ड कर देते हैं। सो ये वाले हैंड्स को पहले ऐसे रखा था, अब उसने ऐसे फोल्ड कर दिया अपने हैंड को। तो लेट अस से यहाँ पर जो है उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा 2। अब ओमेगा 1 कितना दिया है हमने? 40 रिवॉल्यूशन कितना दिया है? 40। बार पढ़ना। 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो 40 × 2π/60 रेडियन पर सेकंड, है ना, ये वाला। अब उसकी सपोज इसकी इनिशियल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज सपोज I। अब इसकी फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होगी मालूम है? 2/5 है। कहाँ से है? इट इज गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। देखिए यहाँ पर a child stands at the center of turntable with two arms outstretched. The turntable is set rotating with an angular speed of 40 revolution per meter. How much is the angular speed of the child if he folds his hand back and thereby reduces moment of inertia of 2/5 times, है ना। मतलब पहले जितनी मोमेंट ऑफ इनर्शिया थी उससे 2/5 टाइम्स। अब आप मुझे बताइए कि अगर ये ऐसे खड़ा है और यहाँ पर ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है, तो क्या कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगती है? एक्सटर्नल टॉर्क क्या उसको लगी? नहीं, एक्सटर्नल टॉर्क इज नॉट देयर एट ऑल। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बार बार हम लोगों ने पढ़ा है कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। मतलब अगर ये पोजीशन नंबर 1 है और ये पोजीशन नंबर 2 है तो L1 इज इक्वल टू L2, तो क्या होगा I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू वी कैन से I2 ओमेगा 2 होगा ना बेटा। तो I1 की जगह पे हम लोग I लिख देते हैं, ओमेगा 1 की जगह पे हम लोग जो है क्या लिखते हैं यहाँ पर 2/0 विल गेट कैंसिल और यहाँ पर हमारे पास 4/3 पाई, ठीक है 4/3 पाई सही है, इज इक्वल टू 2/5 I2 और ओमेगा 2 इज अननोन टू अस। सो ओमेगा 2 कितना हो गया, ये I and I will get cancel, so 4/3 पाई into 5/2 is equal to ओमेगा 2। चलिए ये वाला हो गया, इसको इधर लिखा है, इसको इधर लिखा है, तो ये वाला हो गया 2। देखिए ओमेगा 2 is equal to 10π/3 रेडियन पर सेकंड। ये वाला ओमेगा 2 हो गया 10π/3 रेडियन पर सेकंड। ये वाला आपके पास ओमेगा 2 हो गया। अब ये ओमेगा 2 हो गया। अब उन्होंने क्या कहा है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी, देखिए उसमें क्या है, ये पहला वाला आंसर तो हो गया कि यहाँ पर तो assume that the turntable rotates about without friction। चलिए show that the child's new kinetic energy of rotation is more than initial kinetic energy। rotational kinetic energy की बात, तो चलिए rotational kinetic energy Kr1 upon Kr2 है ना। rotational kinetic energy is 1/2 I1 omega 1 square divided by 1/2 I2 omega 2 square। so यहाँ पर ये वाला कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर Kr1 काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी 2, I1 कितना था I और ये कितना था ओमेगा 1, 4/3 पाई का स्क्वायर और ये वाला कितना था 2/5 I और ओमेगा 2 कितना था 10π/3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमारे पास Kr1 अपॉन Kr2 इज इक्वल टू I and I will get cancel। ये 16 पाई स्क्वायर बाय 9 और यहाँ पर 2/5 तो वैसे का वैसा रहेगा, यहाँ पर रहेगा 100 पाई स्क्वायर बाय 9। सो 9 and 9 will get cancel, पाई स्क्वायर एंड पाई स्क्वायर will get cancel। सो ये वाला कितना हो गया Kr1 अपॉन Kr2 इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय आपके पास आ गया 200। सो दिस 2 will get cancelled। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 4 2 एंड 4 5। ओके, तो इतना लिखिए, फिर बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइट डाउन, इतना लिखो, लिख लिया, वीडियो पोस्ट करके लिख लो, वीडियो पोस्ट कर लिया। चलिए वीडियो पोस्ट करके लिख लीजिए। अब हमारे पास Kr1 अपॉन Kr2 इज इक्वल टू 2/5। अब 2/5 क्या है, इट इज लेस देन 1 है ना। तो Kr1 अपॉन Kr2 लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था तो ये 0.4 आ रहा था, तो ये लेस देन 1 हो गया। मतलब Kr1 इज लेस देन Kr2। मतलब क्या मालूम है, इसका सिंपल मतलब ये था कि जब वो बच्चा ऐसे खड़े रह तो रोटेट हो रहा था, तो उससे ज़्यादा जो है स्पीड में रोटेट होगा कब, जब वो ऐसे करेगा तब। अब ये इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्यों आई, बिकॉज देखिए उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ। देखिए पहले यहाँ पर ये कॉन्फ़िगरेशन था, कॉन्फ़िगरेशन ये चेंज हुआ। कितनी बुक्स में उसको ऐसा लिखा है बिकॉज ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब ये इंटरनल एनर्जी कहाँ से आ गई, बहुत सारी रेफरेंस बुक में इसको ऐसे बताया है, बहुत सारी रेफरेंस बुक में इसको ऐसे बताया है कि दिस इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज एट्रीब्यूटेड टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी। अरे इंटरनल एनर्जी कहाँ से हुई, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, है ना। तो दिस इज बिकॉज दिस इज एट्रीब्यूटेड टू चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज। ओके बेटा, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।